addition. In a similar way, you can separate the two different function as far as Z transform is concerned. मतलब Z transform of F plus Z transform of G can be written as that A is the constant. A constant आपको ये पे दिखाई दे रहा है कि Z ट्रांसफॉर्म में एक्चुअली समीशन आता है और समीशन से आप कांस्टेंट को बाहर लेके आ सकते हो, तो Z ट्रांसफॉर्म में भी आप कांस्टेंट को इजीली बाहर लेके आ सकते हो. So Z transform of first function plus Z transform of second function, and you can take this constant to be outside to that Z transform. So this can be written as A into capital F का ये क्या है Z transform है और ये G का capital G क्या है Z transform. Okay, this properties are not important as far as your theory part is concerned. Okay, ये बस मैंने आपको दिया है, ऐड करके दिए. लेकिन के बाद में अगर कहीं पे MCQ आ जाता है तो in that case we'll try to cover this. Okay, या अगर कहीं पे एग्जांपल मुझे दिखाई देता तो उस केस में ये कवर करता हूँ. तो अभी बस फोकस करो डेफिनेशन, उसके बाद लिनियरिटी. Now next we add one student quickly. So next is what the multiplication by k. ये हमें कल के लेक्चर में कवर करना है, तो आई थिंक ये एक प्रॉपर्टी है जो कल के लेक्चर में आपकी कंप्लीट हो जाएगी. दैट इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ Z ट्रांसफॉर्म. ओके, आज के लेक्चर में हमें क्या देखना है, डिवीजन बाय k. मतलब मींस व्हाट, f ऑफ k आपका गिवन फंक्शन है. ओके, अगर आप उसको k से डिवाइड करते हो, है ना, so this is f of k is your given function, and if I divide it by k, okay, then the Z transform of f of k upon k become the integration from Z to infinity. Okay, Z to infinity, Z inverse or 1 by Z multiplied by capital F, where this capital F is what Z transform of this numerator. ये एक प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो अगर f of k को अगर k से डिवाइड हो रहा है तो उस केस में आपको Z ट्रांसफॉर्म कैसे करना, कैलकुलेट करना है. जो आपका f of k था या जो आपका न्यूमरेटर था उसका बस आप Z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो. सो दिस कैपिटल F इज एक्चुअली द Z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस स्मॉल f, और आई कैन से द न्यूमरेटर, है ना. बस इसका आपको Z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 by Z. ओके, देन टेक द इंटीग्रेशन फ्रॉम Z टू इंफिनिटी. लिमिट्स आर फ्रॉम Z टू इंफिनिटी. सो दिस गिव्स यू द Z transform or Z transform of f of k upon k. Next is what, अगर फंक्शन को e raised to ak से मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके, e is the exponential, a is a real constant, k is also constant. So Z transform of e raised to ak f of k. ओके, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है, उस फंक्शन को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, e raised to ak से. तो इसका आंसर क्या है, तो आप पहले करना क्या है, ये जो आपका f of k था, इस f of k का आप पहले Z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो. So that Z transform is denoted by f of Z, and फिर उसमें क्या करो, Z की जगह पे क्या पुट करो, e raised to az. तो जहाँ पे Z था उसके जगह पे आप क्या पुट करो, e raised to az. So that is the Z transform of e raised to ak into f of k, है ना. And in similar way here I define the multiplication by a raised to k. Okay, यहाँ पे e raised to ak था, यहाँ पे a raised to k. Okay, so a raised to k into f of k का Z transform क्या होगा, तो जो आपका f of k आपको पहले उसका Z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है. ओके, सो फर्स्ट कैलकुलेट द Z ट्रांसफॉर्म ऑफ f of k, एंड इन दैट जस्ट रिप्लेस Z by a. दैट गिव्स यू द Z ट्रांसफॉर्म ऑफ a raised to k into f of k. ठीक है, तो जस्ट फोकस ऑन दिस थ्री रिजल्ट, वन बाय वन में एग्जांपल्स भी लेने वाला. ओके, तो क्या क्या लेने वाले हैं आज के लेक्चर में, डिवीजन बाय k, इफ आई डिवाइड f of k by k, if I multiply f of k by a raised to k, and if I multiply f of k by a raised to k. And we'll see later on this 9th and 10th property. Okay, so we'll start with the difficult property, division by k. Okay, so our result is like this, f of k upon k का आंसर क्या आता है, इंटीग्रेशन Z इनवर्स और 1 by Z multiply by capital F of Z, where this capital F of Z is the Z transform of numerator only. Remember this is very important. Okay, so let's take one simple example. Question is like this, ये जनरली क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है. Find the Z transform of the function f of k is equal to sin ak upon k, where k is positive. And remember that Z transform of sin alpha k, वो जो सारे रिजल्ट थे, है ना, स्टैंडर्ड फंक्शन के वो सारे जो रिजल्ट थे, that all results are for k greater than or equal to 0. इसलिए बाय डिफॉल्ट उन्होंने k greater than 0 ही कंसीडर किया. ज्यादातर स्टैंडर्ड फंक्शन का जो Z ट्रांसफॉर्म था वो हमने k greater than or equal to 0 केस में कैलकुलेट किया. सो आपको एक पहले प्रॉपर्टीज ऑफ Z ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस आपको आइडेंटिफाई कैसे करने हैं. ओके, हाउ यू आइडेंटिफाई द एग्जांपल्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ Z ट्रांसफॉर्म, आइडेंटिफाई कैसे करने हैं. ओके, अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि k से डिवाइड किया है फंक्शन को, देन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ Z ट्रांसफॉर्म. या अगर कहीं पे लग रहा है कि किसी एग्जांपल में f of k को e raised to ak से मल्टीप्लाई किया, देन यूज
द प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। अगर आपको कहीं पे लगता है कि वहां पे फंक्शन को गिवन f of k को a raised to k से मल्टीप्लाई किया, देन ऑल्सो यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि sin a k जो आपका फंक्शन है, ओके, उस फंक्शन को k से डिवाइड किया गया है। ओके, सो हियर आई यूज द प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। सो इन सॉल्यूशन, ओके, द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ak अपॉन k ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था, जेड कैलकुलेट द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, ओके, बट इसको आपको कैसे देखना है, दिस लुक लाइक दिस, ठीक है। अगर आप इससे कंपेयर करते हैं तो सेम पैटर्न में आ रहा है। ऑन न्यूमरेटर यू विल हैव वन फंक्शन दैट इज योर f of k अंडर दिस फॉर्मूला, नीचे क्या है, डिवाइड बाय k। तो आपके पास रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ z इनवर्स मल्टीप्लाई बाय कैपिटल F। वेयर व्हाट इज दिस कैपिटल F, यहाँ पे कैपिटल F क्या होता है, दिस कैपिटल F इज एक्चुअली द z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस न्यूमरेटर, है ना। तो दिस कैपिटल F इज एक्चुअली z ट्रांसफॉर्म ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूं, to use this property, okay, first I calculate the z transform of numerator। तो मैंने डायरेक्टली नीचे पहले क्या कंसीडर किया, let's calculate the z transform of sin a, and remember this is actually your f of z, okay। हमेशा याद रखो जो न्यूमरेटर का पार्ट था which is small है, उसका जो z ट्रांसफॉर्म है वो आपने किससे डिनोट किया, कैपिटल F से, ओके। अगर आपको ये फॉर्मूला पर्टिकुलर यूज करना है, ओके। सो z ट्रांसफॉर्म ऑफ sin a k आपके पास रिजल्ट ही है डायरेक्टली, z ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फा k इज इक्वल टू, ये हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था। तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ sin अल्फा k इज व्हाट, z sin अल्फा अपॉन z स्क्वायर माइनस 2z cos अल्फा प्लस 1 वेयर प्रोवाइडेड मोर z इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे बस a था, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, z sin a अपॉन z स्क्वायर माइनस 2z cos a प्लस 1। ये आपने कैसे लिखा है, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रॉम द z ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, ओके। तो अभी आप यहाँ पे डायरेक्टली जंप करो बिकॉज दिस इज द एग्जांपल ऑन प्रॉपर्टीज। तो उस केस में वो जो रिजल्ट थे स्टैंडर्ड फंक्शन के, आप वो डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ओके। सो एंड नाउ दिस इज माय f of z। नाउ कंसीडर द z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन अपॉन k। सो f of k अपॉन k रिजल्ट क्या आता है, योर आंसर इज इंटीग्रेशन फ्रॉम z टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम z टू इंफिनिटी z इनवर्स एज इट इज। यहाँ पे जो f of z था वो f of z क्या था, z ट्रांसफॉर्म न्यूमरेटर जो आपने कैलकुलेट किया है व्हिच इज व्हाट, z sin a अपॉन z स्क्वायर माइनस 2z cos a प्लस 1 हो गया। नाउ प्रोवाइडेड दिस mod z इज ग्रेटर देन 1, ये आपको डायरेक्टली रिजल्ट से मिल रहा है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, इज देयर एनी डाउट अप टू दिस पार्ट, ओके। जस्ट कंपेयर विद दिस रिजल्ट, जिसमें क्या था कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में क्या आता है, या इफ दैट फंक्शन इज डिवाइडेड बाय k, in that case just calculate the z transform of numerator, that is capital F, multiply it by z inverse and then take the integration from z to infinity। So here I just calculate the z transform of numerator, sin a k का z transform ने calculate किया, okay, multiplied by z inverse and then take the integration from z to infinity, provided mod z is greater than 1, okay। So this I think 1 by z cancel with this z, okay। So in next slide or in here also you can see then this becomes sin a is the constant, can take outside to this integral, so this become integration from z to infinity dz upon z square minus 2z cos a plus 1, okay। अभी आपका टारगेट क्या है, now you have to just solve this integral dz upon z square minus 2z cos a plus 1। now just solve this integral, okay, हो गया फिर आपका एग्जांपल। और अभी ये एग्जांपल अगर आपको सॉल्व करना है या अगर ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है, ओके, तो आपको क्या समझ में आया, जो फर्स्ट टू टर्म्स है, नाउ यू हैव टू जस्ट सॉल्व दिस इंटीग्रल। तो अभी बस मैं आपको इंटीग्रेशन का पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओके। नाउ हाउ यू सॉल्व दिस इंटीग्रल, अगर आप इन टर्म्स को अच्छे से देखते हो तो नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, z² है, करेक्ट, माइनस 2z cos a आ रहा है ना, और आपके पास एक रिजल्ट है a प्लस b होल स्क्वायर का, है ना। व्हाट इज दैट रिजल्ट, a स्क्वायर, सॉरी ये माइनस b में लेता हूं, अगर मुझे इससे मैच करना है, सो आई नीड टू टेक माइनस हियर। सो a माइनस b का रिजल्ट क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट, प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से दो टर्म्स ऑलरेडी मेरे पास आ रहे हैं, a की जगह पे अगर मैं z लेता हूं, ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फर्स्ट मुझे z स्क्वायर मिल जाएगा 2 एज इट इज, ओके। यहाँ पे a into b होता है, बट a मैंने z लिया और b में अभी क्या ले रहा हूं, cos a। So if I consider z minus cos a whole square, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, प्लस cos a square चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर में फर्स्ट टू टर्म्स को कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 1 की जगह पे क्या चाहिए, cos स्क्वायर a चाहिए,
तो वो मैं कैसे एडजस्ट करने वाला हूँ। 1 की वैल्यू क्या है, sin square theta plus cos square theta is always equal to 1. So in next step I just replace 1 by cos square plus sin square. Reason is what I want to with this first part I want to convert this first part into perfect square, and now this I can write it as z minus cos a whole square and remaining part is just sin square a. Okay, ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरे पास एक रिजल्ट है dz अपॉन है ना x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, फेमस रिजल्ट इंटीग्रेशन में। ओके, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a इज द कांस्टेंट, तो ये sin स्क्वायर a आप एक्चुअली आपका a आ रहा है, x इज व्हाट द वेरिएबल टर्म व्हिच इज z माइनस cos a, सो दिस इज माय x, दिस इज माय a। तो आपका रिजल्ट क्या आता है यहाँ पे 1 by a tan inverse of x by a. So if I use this result here, okay, so 1 by a, 1 upon sin a, tan inverse of x is this z minus cos a upon sin a, and your limits from z to infinity. Actually यहाँ पे x था तो x की जगह पे यहाँ पे z minus cos a आ रहा है, तो चेन रूल क्या होता है, जब ये पूरा फॉर्मूला आप यूज करते हो नीचे आपको करना क्या है, जो x था उसका डेरिवेटिव से डिवाइड करो, बट इस केस में x का डेरिवेटिव 1 आता है तो इसलिए नीचे आप कुछ भी नहीं लिखते हो। इस केस में भी z minus cos a का डेरिवेटिव 1 आएगा बिकॉज़ cos a इज कांस्टेंट, तो इसलिए यहाँ पे भी नीचे कोई टर्म नहीं आएगा। दिस इज एक्चुअली अ चेन रूल। ओके, तो इंटीग्रेशन आपने अच्छे से सॉल्व किया, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके नाउ जस्ट पुट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। हियर आई यूज दिस फार्मूला 1 by a tan inverse of x upon a, correct, and now if I put the upper limit tan inverse of infinity which is pi by 2, and if I put the lower limit is z में, तो z की जगह पे z पुट करते हो तो वो वैसा ही रहेगा। सो अपर लिमिट इज pi by 2, ये sin कैंसिल हो रहा है, this sin a actually cancel with this sin a, and remaining में upper limit is pi by 2 and lower limit is that term itself, and provided mod z is greater than 1, and this is your final answer। आप चाहो तो pi by 2 minus tan inverse को cot में भी लिख सकते हो, this can be written as cot inverse of this bracket part, ये जो भी bracket में उसको कॉपी करो या यहीं पे आप स्टॉप करते हो, that is also okay। So this is your first property। Okay, अगर नहीं अभी भी क्लियर हो रहा है, I will take one more example on this division by k। फिर भी कुछ डाउट्स आता है तो मुझे इमीडिएटली स्टॉप करो। ओके, जिस भी स्टेप में आपको स्टॉप करना है आप वहीं पे स्टॉप करो, and we'll take the example like this। find the z transform of f of k which is equal to 2 raised to k upon k। always remember कि what is the condition on k, इसलिए जो मैंने आपको टेबल दिया था उस टेबल में भी आपको मैंने k के सारे कंडीशंस दिए थे। ओके, तो ज्यादातर इसमें कंफ्यूजन होगा कि कौन से केस में k 0 से k takes values greater than or equal to 0 and in which case k takes the value greater than or equal to 1, है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है या 1 से स्टार्ट हो रहा है, जनरली इसमें वो कंफ्यूजन रहता है। ओके, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगेन हियर आल्सो दैट न्यूमरेटर इज योर फंक्शन, सो दिस 2 raised to k इज एक्चुअली योर f, है ना, नीचे आपका क्या हो रहा है, k से डिवाइड हो रहा है, तो आपको करना क्या होगा, पहले जो आपका न्यूमरेटर है उसका आपको पहले z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। सो इन सॉल्यूशन, ओके, फर्स्ट आई नीड टू कैलकुलेट द z ट्रांसफॉर्म ऑफ न्यूमरेटर 2 raised to k, तो उसका आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट है क्योंकि आपके पास एक रिजल्ट था, है ना, स्टैंडर्ड फंक्शन के केस में रिजल्ट क्या था कि z ट्रांसफॉर्म ऑफ a raised to k इज इक्वल टू z अपॉन z बाय a, है ना, प्रोवाइडेड mod z इज ग्रेटर देन mod a एंड k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट यूज करना है, दैट इज ओके, बट ये जो रिजल्ट था जो हमने जो टेबल था स्टैंडर्ड फंक्शन का उसमें या आज के लेक्चर में भी इनिशियली जो आपको मैंने दिखाया था उसमें डायरेक्ट रिजल्ट होगा, बट उस रिजल्ट के लिए k के ऊपर कंडीशन क्या है, दैट k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो मुझे रिजल्ट तो यूज करना है बट मुझे k से भी करके पहले इस k को चेंज करना होगा, है ना, ये इतना सिंपल होता है। k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब k स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, और मुझे एक्चुअली इस क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए, आई वांट k फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अभी देखो ये चेंज मैं कैसे कर रहा हूं। ओके, तो मैंने फॉर्मूला तो यूज किया, बट दिस रिजल्ट इज फॉर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट आई वांट दिस रिजल्ट फॉर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो मैं कैसे स्विच कर रहा हूं। Okay, z transform of any given function, what is our formula, z transform of any given function is equal to summation, okay, of that function multiplied by z raised to minus k. This is my definition, summation of that function multiplied by z raised to minus k, but here as this result is true for, okay, ये डायरेक्टली मैंने स्टैंडर्ड फार्मूले से कॉपी किया,
बट मुझे ये कैलकुलेट करना है बट फॉर k greater than or equal to 1. Okay, so now since this z transform is for k greater than or equal to 0, तो यहाँ पे मैं नीचे भी क्या लेने वाला, k vary from 0 to infinity, but I want this result for k greater than or equal to 1, so I don't want for k equal to 0, तो मैं k equal to 0 का पार्ट इसमें कैलकुलेट करके लेता हूँ. So if I put k equal to 0, then it become 2 raised to 0 which is 1, z raised to 0 which is 1, so the whole calculation for k equal to 0 is just 1. Now I can start my summation from k equal to 1 to infinity. Okay, अभी तो आपकी अभी इस केस में समेशन आपकी 1 से लेकर infinity तक जा रही है, और ये जो 1 था इस 1 को आप राइट साइड में शिफ्ट करो. So this can be written as summation k runs from 1 to infinity z upon z minus 2 minus 1. If I simplify this, you will get 2 upon z minus 2. Okay, और ये एक्चुअली आपका लेफ्ट साइड में क्या है, फंक्शन मल्टीप्लाई बाय z raised to minus 1, it means z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस. बट यहाँ पे एज अवर समेशन इज वैरी फ्रॉम k equal to 1 to infinity, तो अभी इस केस में मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, k greater than or equal to 1. ठीक है, अब देखिए ये स्विच मैंने कैसे किया. मेरे पास स्टैंडर्ड फंक्शन से जो रिजल्ट आ रहा था, ओके, वो रिजल्ट ये था z upon z minus a, but this result is true for only k greater than or equal to 0, but मुझे चाहिए था k greater than or equal to 1 के लिए. तो मैंने क्या किया था, इस समेशन में 0 की वैल्यू पुट करके उसको राइट साइड में शिफ्ट करके उसमें एडजस्ट किया. Now I can run my k from 1 to infinity. I hope this part is clear to everyone. If not clear, just let me know immediately. Okay. Okay. तो अभी आपका जो न्यूमरेटर था 2 raised to k, where k is greater than or equal to 1, उसका आपने z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया. That z transform is 2 upon z minus 2. Okay. Now I can use this property. So the z transform of that function 2 raised to k divided by k, divided by k is equal to integration from z to infinity z inverse multiply by z transform of numerator. उसका ट्रांसफॉर्म क्या था, 2 upon z minus 2 into dz. These are all the conditions that you will get it from your standard function. Okay, and now just solve this integral. Okay, so I just shift this z in the denominator, so it become 2 upon z into z minus 2. And now just write out the partial fraction corresponding to this, which is a upon z plus b upon z minus 2, है ना. तो डायरेक्टली a की वैल्यू क्या आ जाएगी, if I calculate a is equal to a के नीचे क्या था z, तो z को डिलीट करो, you will get 2 upon z minus 2 and calculate ये न्यूमरेटर a के नीचे जो फैक्टर था वो कौन सी केस में 0 होता है, और z equal to 0. okay, तो क्या दे रहा है ये वैल्यू 0, सॉरी ये 2 है. So 2 upon minus 2, so it is minus 1. So a is minus 1. Okay. b की वैल्यू क्या है, b के नीचे फैक्टर कौन सा है, z minus 2, उसको डिलीट करो, you will get 2 upon z only. हाँ, फिर कैलकुलेट कौन से केस में करना है, b के नीचे कौन सा फैक्टर था, z minus 2, वो कौन से केस में 0 होता है, z equal to 2 पे, और 2 by 2 become 1. So if I calculate this, you will get 1 upon z minus 2 minus 1 by z. And now just solve this integral. You will get log of z minus 2 minus log z, where limits are from infinity to z to infinity. अभी इसमें जब आप अपर लिमिट पुट करते हो ना, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि log infinity minus log infinity, but this is not defined, है ना. So if I put upper limit, actually here we will get log infinity minus log infinity, which is not defined, which is actually a indeterminate form, है ना. तो ये मुझे क्या करना होगा, लिमिट से सेपरेट सॉल्व करके लेना होगा. So limit z tends to infinity. So if I put upper limit, okay, that is I want to solve limit z tends to infinity log of, now this log a minus log b can be written as log of a upon b. So log of z minus 2 upon j. तो एक्चुअली मुझे अपर लिमिट के लिए सॉल्व करना है, इट मींस आई वांट टू सॉल्व दिस लिमिट. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. Okay, so if I put infinity here, whatever the value I want to calculate, okay, that is nothing but limit z tends to infinity log of z minus 2 upon z. Okay, now try to put z equal to infinity. So here you will get infinity upon infinity form, which is not defined, so I need to use L'Hospital rule. Okay, so that rule says just replace numerator by its derivative and denominator by its derivative. So this can be written as limit z tends to infinity log of, what is your numerator, z minus 2, but z का डेरिवेटिव 1 and 2 का 0, so 1 only, नीचे भी z है, z का डेरिवेटिव 1, so 1 only, and log 1 is 0. So the so for upper limit your value is 0. Okay, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कंसीडर किया, so upper limit के लिए 0 मिल रहा है, माइनस लोअर लिमिट के लिए क्या मिलेगा आपको. So I think that minus sign is here. Okay, so minus log of z की जगह पे z, log of z minus 2 minus
z. सो यहाँ पे एक माइनस साइन है, सो दिस इज और एक्चुअली माइनस टाइम्स, सो मे बी वो शायद रह गया, ठीक है. एंड नाउ जस्ट सिंप्लीफाई दिस, व्हाटएवर द आंसर यू विल गेट दैट इज योर फाइनल आंसर. सो एक्चुअल फाइनल आंसर में यहाँ पे माइनस साइन है, या आप चाहो तो इसको रिवर्स करो. ओके, तो ये इतना सिंपल था. यहाँ पे बस मैंने आपको एक ट्रिक एक्सप्लेन की है इस एग्जांपल में, कि जो ट्रिक क्या है कि आपके पास जो स्टैंडर्ड फंक्शन के रिजल्ट थे वो k ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए है. अगर आपको k ग्रेटर और इक्वल टू 1 के लिए चाहिए तो ये एडजस्टमेंट करनी है. अगर आपको k ग्रेटर और इक्वल टू 2 चाहिए तो k इक्वल टू 0 के लिए भी सॉल्व करो, k इक्वल टू 1 के लिए भी सॉल्व करो, मैं सारे वैल्यूज राइट साइड में शिफ्ट करो. सो आई होप you can understand this trick. Okay, this is very important, otherwise you need some time to calculate the z ट्रांसफॉर्म a raised to k डायरेक्टली. आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो समेशन का यूज करके. अगर आपको उससे नहीं जाना है तो आप ये ट्रिक याद करो. ओके, सो अगर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे इमीडिएटली बोलो, सो दैट आई कैन रिपीट इट वन मोर टाइम. सो दैट इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी. आई कैन से योर where you can divide a function by k. Now this is my second property, linearity property. It is I already explained this property. You can separate the z transform of first and z transform of second. Okay, so I will take one simple example on this property. Okay, question is like this: find a z transform of sine of 3k plus 4. Remember, we don't have any result for sine of ax plus b. Sine of alpha x plus b के केस में आपके पास कोई रिजल्ट नहीं है ना. आपने जो z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया था प्रीवियस स्लाइड में, दैट इज ओनली फॉर z ट्रांसफॉर्म ऑफ sin अल्फा x. ये दोनों अलग अलग है. वी हैव रिजल्ट फॉर sin अल्फा x ओनली, बट वी डोंट हैव एनी रिजल्ट फॉर sin ऑफ अल्फा x प्लस b. ठीक है, तो b अगर प्लस b ऐड होता है, दिस आई विल एक्सप्लेन फॉर अ sin फंक्शन, cos फंक्शन, sin हाइपरबोलिक एंड cos हाइपरबोलिक, सबके सारे केस में, है ना. तो फिर सॉल्व कैसे करना है? सो लेट्स ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन. z ट्रांसफॉर्म sin ऑफ 3k plus 4. आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि आपके पास sin अल्फा x का रिजल्ट है, बट वी डोंट हैव एनी रिजल्ट फॉर sin ऑफ अल्फा x plus b. ओके, तो so just to delete this term alpha x plus b, okay, what I can do, I use the formula of sin of a plus b. Sorry, sin of a plus b. क्योंकि मुझे ये ax plus b का टर्म यहाँ पे नहीं चाहिए sin के अंदर, तो मैं क्या करता हूँ sin of a plus b का फॉर्मूला यूज करता हूँ, which is sin a cos b plus cos a sin b. आप देखो कहीं पे भी है ना ax plus b का टर्म नहीं आएगा. ax plus b plus 3k plus 4 का टर्म अभी स्प्लिट हो गया. Now we don't have a term like 3k plus 4. Okay, we have only 3k. One term is sin, one term is cos. Okay, and now this is a constant. Cos 4 is constant. Okay, यहाँ पे भी sin 4 आपका constant है. तो पहले आप क्या करो, cos 4 बाहर लेके आओ. cos 4 बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन. यहाँ से भी sin 4 बाहर आ जाएगा एंड ब्रैकेट में z ट्रांसफॉर्म ऑफ cos फंक्शन. और इसके लिए मैंने आपको पहले बोला था कि इन दोनों के केस में आपके पास रिजल्ट है. वो रिजल्ट क्या है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ इस स्लाइड में. So that result is z transform of sin alpha k, z sin alpha upon z square minus 2z cos alpha plus 1, and z transform of cos alpha is z in bracket z minus cos alpha upon z square minus 2z cos alpha plus 1. In both cases where mod z is greater than 1. Okay, अच्छे से याद रखो ये सारे फॉर्मूले. वही मैंने यूज किया है. यहाँ पे अल्फा की जगह पे 3 था, तो z sin 3 upon z square minus 2z cos 3 plus 1. यहाँ पे अल्फा की जगह पे 3 है, z in bracket z minus cos 3 upon z square minus 2z cos 3 plus 1. Now I just simplify this. In next slide you will see that simplification. Okay, you will have a common denominator, so just add the numerator part, and if I simplify this, you will get z cos 4 sin 3, z square sin 4. Next is minus z sin 4 cos 3. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको वैसे रखता हूँ plus z square sin 4, और यहाँ से from this two terms I can take z common. So if I take minus z common, so minus z in bracket sin 4 cos 3 minus cos 4 sin 3. So in bracket actually we will get sin a cos b minus cos a sin b. नहीं दिखा है वो कैलकुलेशन. तो in bracket actually z in bracket sin a, if I take minus z common ना, sin a cos 3 minus cos 4 sin 3. This is actually sin a cos b minus cos a sin 3. So this is actually sin of a minus b. So sin of 4 minus 3 is directly 1, sin 1, है ना. और नीचे as it is. तो ये सिंप्लीफिकेशन आपके ऊपर डिपेंड है. बाय मिस्टेक अगर आपसे स्किप भी होता है तो भी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, बट ट्राई टू सिंप्लीफाई. इन एवरी एग्जांपल बट ट्राई टू सिंप्लीफाई. मे बी ऐसा कोई एग्जामिनर हो सकता है जो आपके 1 मार्क्स यहाँ पे रिड्यूस कर सकता है. ठीक है,
सो दिस इज द लिनियरिटी प्रॉपर्टी, जिसमें आप sin 3 cos 3 ऐसे जो कांस्टेंट्स है उनको आप बाहर लेके आ सकते हो, और यू कैन सेपरेट z ट्रांसफॉर्म विद द एडिशन. Okay, and now last two properties are very simple. Okay, within 5 minutes I can cover this. Next property क्या है, अगर f of k को a raised to k से मल्टीप्लाई हो रहा है, okay, so in that case आपको करना क्या है, ये जो f of f था उसका आपको पहले z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना. तो पहला जो आपका अप्रोच होगा, पहले आपको कैलकुलेट करना है f of z, दैट इज द z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस f. फिर उसमें जहां पे z था, z की जगह पे z by a पुट करो, a इज दिस, दैट इज योर फाइनल आंसर. अब देखो ये कितना सिंपल है. आपको कैलकुलेट करना है z ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 raised to k sin of 2k plus 3, right? So in solution, so now this is my a raised to k and multiply by f. So ये आपका हो गया f and now this is a raised to k, है ना. ये रिजल्ट आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया है. तो आपको पहले क्या करना होगा, जो f है उसका आपको पहले z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है. तो sin of 2k plus 3 का z ट्रांसफॉर्म जो लास्ट क्वेश्चन था सिमिलर है, तो आई जस्ट स्किप दोस स्टेप्स. ये कैसे कैलकुलेट किया है, फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल. So I just skip that part and directly मैं नीचे आता हूँ, and now you will have f of z is what, that z transform of, this is actually a z transform of sin of 2k plus 3. तो आपने वो कैलकुलेट किया है, and उसको आपको क्या बोलना है, कैपिटल F. So this is your कैपिटल F, and अगर आप उस F को a raised to k से मल्टीप्लाई करते हो तो चेंज क्या करना है, इस z में this z जस्ट रिप्लेस z by 4, ठीक है. इसमें बस z की जगह पे z by 4 रखो, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करो, दैट इज योर फाइनल आंसर. ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो इसमें बस करना क्या है, a raised to k into एनी फंक्शन. उसमें करना क्या है, ये जो फंक्शन है इसका z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो, दैट इज नथिंग बट कैपिटल f of z, और उसमें z की जगह पे बस क्या रखो, z upon a, और ये क्या होता है, ये 4. So just put z equal to z by 4. सिमिलर प्रॉपर्टी है, इसलिए ये भी क्विकली हो जाएगी. इफ आई मल्टीप्लाई अ फंक्शन बाय e raised to ak, है ना, तो इसमें भी क्या करना है, जो f है उसका आपको पहले f of z कैलकुलेट करना है. मल्टीप्लाई जो फंक्शन है उसका आपको पहले z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, फिर उसमें z की जगह पे e raised to a into z रखना है. लेट्स टेक माय एग्जांपल क्विकली. सो इन सॉल्यूशन, तो नाउ दिस इज माय f. तो पहले आपको क्या करना है, इस f का z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है. सो z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन is equal to, now this is sin of alpha k, which is z sin alpha upon z square minus 2z cos alpha plus 1 by this formula, ठीक है. बट तो ये जो था, ये जो फंक्शन है, मल्टीप्लाई जो फंक्शन है उसका जो z ट्रांसफॉर्म है which is denoted by capital F of z, यही मैंने रिप्लेस किया कैपिटल F of z से, अदरवाइज इट इज सेम. और इसमें z की जगह पे क्या रखो, z की जगह पे बस क्या रखो, e raised to a into, सॉरी यहाँ पे z नहीं है, यहाँ पे z नहीं है, I think I made some mistake here. So this z is not there. Just put e raised to a into z, है ना. तो यहाँ पे बस जहाँ पे z था उसकी जगह पे e raised to a into z sin भी, जहाँ पे z था e raised to a into z, यहाँ पे z था e raised to a into z. That is the value of z transform of e raised to a sin b. I think I just need to check this formula one more time. Okay, so I will let you know. ओके, लास्ट के क्वेश्चन में वो जो करेक्शन है आपको वो करेक्ट करके देता हूँ. आई थिंक ओके, टाइम हो गया ऑलरेडी, वी आर लेट. यू जस्ट पुट योर रोल नंबर इन चैट बॉक्स, just put your roll number, full roll number in chat box, and